If you have a budget of around 100 to 150,000 dollars और आपका 2026 में E2 वीजा को करने का प्लान है, then this video is for you. Choosing the wrong business can destroy not only your whole E2 journey, your plan, your future objectives, but it can also destroy your capital as well. Most of the investors, they do not fail because of the money or because of the investments. They just fail because they choose the wrong business category when it comes to their, making the initial investment for their E2 perspectives. So today in this video, मैं आपके साथ जो है वो 7 ऐसी कैटेगरीज के बिजनेसेस जो है वो ब्रेक डाउन करूंगा जो कि 100 से 150,000 डॉलर्स के बजट रेंज में होंगे एंड दे विल बी बेस्ड ऑन देयर E2 क्वालिफिकेशन एंड क्राइटेरियाज, जिनमें से ऑफ कोर्स E2 अप्रूवल जो रेशियो है, जो स्ट्रेंथ है, वो नंबर 1 पे होगा, देन द बजट, देन द रिस्क एपिटाइट, देन द जॉब क्रिएशंस कि वो यूएस की में इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशंस कितना कर सकता है, और इसके साथ साथ रिस्क लेवल जो है उस कैटेगरी की बेस के ऊपर लेट्स ब्रेक डाउन द 7 इंडस्ट्रीज, 7 बिजनेसेस for year 2026. Assalamu alaikum. My name is Rahil Sheikh. I'm a business consultant based in Virginia, USA. मेरी firm Startup Business Bureau में we provide consulting and management services to international investors जो अमेरिका में अपना business establish करना चाहते हैं और उस business की base पे E2 visas को qualify करना चाहते हैं. As a business consultant who is engaged in establishing businesses for E2 visa, I have seen the businesses, I have seen the businesses fail, I have seen the investors succeeding and failing both, and I have structured the E2 businesses across the retail, online and services industry, and that's why I know exactly which industries will survive the scrutiny कि कौन सी ऐसी industries हैं जो E2 approval में ज्यादा successfully perform करेंगे and which are the industries who will fail the marginality test. So let's dive deep into this. So the first thing you need to know that this all comparisons is not based on the hypes, is based on the लॉजिक एंड एक्सपीरियंस के जो करंट मार्केट में वेरी क्लोजली विच वी हैव वर्कड एंड स्क्रूटनाइज्ड द बिजनेसेस एंड द बिजनेसेस विच सर्वाइव एंड पास्ड थ्रू द E2 क्वालिफिकेशन. फॉर ईच बिजनेस आई विल एनालाइज द स्ट्रक्चर, देयर इन्वेस्टमेंट, टिपिकल स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट ब्रेकडाउन, देयर हायरिंग पोटेंशियल, जॉब क्रिएशन पोटेंशियल, देयर मार्जिनलिटी टेस्ट, ऑपरेशनल डिफिकल्टी एंड रिस्क स्कोर. सो लेट्स स्टार्ट. सो नंबर 1 बिजनेस जिसको मैं इवैल्यूएट करने जा रहा हूं, दैट इज अ वेंडिंग बिजनेस. अगर हम इसकी टिपिकल जो इन्वेस्टमेंट मॉडल है इसकी बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट एट लीस्ट स्टार्टिंग विद द वेंडिंग बिजनेस ऑफ एट लीस्ट 8 to 15 वेंडिंग मशीन्स जो कि आपकी कॉस्ट करेंगे समवेयर बिटवीन 70 to 100,000 डॉलर्स की, जो कि आपकी जो वेंडिंग मशीन्स है. एंड देन you need to add up at least $10,000 for the inventory for the vending. You can add $15,000 to $25,000 in terms of your the logistics or hiring or getting a vehicle for the vending servicing, and some operating capital for your expansions and managing your cash flow. So total आपका जो ये investment budget जाता है that goes between $120,000 to $150,000. The best part is that most of the time people believe that the vending is a passive business and or it is a solo business, but at this scale जब आपके पास 15-20 मशीनों से आप start कर रहे हो and you have a big route to take care of and then you still need to expand the business, it is definitely required for you to hire other employees ताकि आप जो है वो you can focus on the business development and growth side and they can focus on the servicing. तो इसमें of course operating जो टीम है उसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है. The next would be the scalability कि इसमें इसी को आप अगर 15 मशीन से स्टार्ट कर रहे हो then over a year you can probably expand it to a 50 machines route. So the scalability test is there. The marginality, because it's a retail, it's a snack and retail business, तो इसमें एक अच्छा रीजनेबल मार्जिन जो है नेट प्रॉफिट्स की अगर बात कीजिए तो 30-35% तक नेट प्रॉफिट जो है वो इस बिजनेस में अवेलेबल है. सो दैट मेक्स इट अ हाईली नॉन मार्जिनल बिजनेस. एंड देन लास्टली द रिस्क फैक्टर. इसका रिस्क फैक्टर आई वुड कंसिडर दिस एज अ मीडियम टू लो साइड बिकॉज मोस्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट इज लिंक्ड अप एंड टाइड विद द हैवी इक्विपमेंट्स, कैपिटल इंटेंसिव इक्विपमेंट्स, तो जिसकी वजह से आपका जो पोटेंशियल रिस्क है वो इट्स ऑन अ लोअर साइड. सो इफ दिस बिजनेस, vending business, is done correctly, it can be a very highly scalable and profitable business as well as qualifying for E2 visa.
The next business which I'm gonna dissect is your favorite typical retail store. But retail store में we are talking about specialty retail like telecom, mobile. जैसे हमारे total wireless की franchise stores हैं, इसी तरह के मोबाइल शॉप्स हो, मोबाइल स्टोर्स हो, या आपके पर्टिकुलर स्पेशलिटी रिटेल, जैसे अगर आपकी कोई अगर आप लेट्स से देसी पाकिस्तानी ग्रोसरी के ऊपर बात कर रहे हो या इस तरह का कोई भी रिटेल के स्टोर की बात कर रहे हो, तो दोज बिजनेसेस कैन बी कंसीडर्ड अंडर दिस कैटेगरी. तो इसकी जो इन्वेस्टमेंट्स है, इसका टिपिकल जो स्टैंडर्ड है वो बिल्ट आउट में ये है कि आपका $40,000 to $60,000 आपका लग जाएगा. $40,000 to $50,000 आपको चाहिए इन्वेंटरी के लिए, इनिशियल इन्वेंटरी के लिए. देन $10,000 to $15,000 जो है जिसमें आपके साइनेज, आपके इक्विपमेंट्स, पॉज मशीन, काउंटर, रजिस्टर्स, तो ये सारी चीजें जो है वो आ जाएंगी. सो ऑल इंक्लूसिव यू आर टॉकिंग अबाउट $150,000 का बजट, जिसमें आप एक अच्छा रिटेल का जो बिजनेस है वो एस्टैब्लिश कर सकते हो. 1 से 2 एम्प्लॉयज आपको इसमें हायर करने होंगे, बिकॉज रिटेल है तो उसमें डेफिनेटली यू नीड अ सपोर्ट फॉर एम्प्लॉयज, सो दैट कैन आल्सो पास योर हायरिंग क्राइटेरिया. मार्जिनलिटी टेस्ट में भी, बिकॉज यू वुड बी हायरिंग एन एम्प्लॉयज एंड इट्स अ मल्टी और स्पेशलिटी आइटम्स रिटेल, सो यूजुअली रिटेल विल गिव यू समवेयर अराउंड 20-25%, और इवन वर्स्ट केस टिपिकल ग्रोसरी रिलेटेड रिटेल जो है वो भी आपको 15% तक का जो मार्जिन है वो दे देती है. सो यूजुअली एंड टिपिकली रिटेल बिजनेसेस वर्क perfectly good for E2 visas. The next one, third category, one of my favorite, always, वो है सर्विसेज इंडस्ट्रीज की. सर्विसेज इंडस्ट्री में आपकी जैसे क्लीनिंग सर्विस या कोई भी होम सर्विसेज के बिजनेस है, जिसमें आपका लॉन केयर है, पेट केयर है, जिसमें आपके पावर विंडो क्लीनिंग है, आपके होम क्लीनिंग है, कार वॉश है, तो एनी काइंड ऑफ होम सर्विसेज का बिजनेस इज ऑलवेज माय फेवरेट कैटेगरी. अच्छा, इसका ब्रेकअप जो है वो क्या होगा? ऑफकोर्स ये सर्विस बिजनेस है तो ये लेस कैपिटल इंटेंसिव है, तो इसमें आपको इनिशियल जो इक्विपमेंट्स है $20,000 to $40,000 तक के आपके इक्विपमेंट्स आ जाएंगे. आपकी $20,000-30,000 की इसमें अगर वैन जो है वो आपको चाहिए होगी स्टाफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए या इक्विपमेंट सर्विसिंग के लिए, तो वो आ जाएगा. मार्केटिंग में आपको ज्यादा स्पेंड करना होगा, $20,000 से $30,000 $40,000 तक जो है वो आपका इसका मार्केटिंग का बजट होगा, बिकॉज सर्विस बिजनेस है, न्यू बिजनेस है, सो यू नीड टू गो विद अग्रेसिव मार्केटिंग and you need to have a payroll, the budget in terms of the operating capital. All, in total, you are talking about somewhere between $80,000 to $120,000 $130,000 के बजट में आप इनमें से कोई भी सर्विसेज का जो बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकते हो. आप सर्विसेज के बिजनेस में भी अगर हम इसके मार्जिनलिटी टेस्ट करें तो ऑफकोर्स इट्स अ हाई टॉप रेटेड हाईली मार्जिन बिजनेस. तो मार्जिनलिटी टेस्ट पे भी पूरा उतरता है हायरिंग पे, बिकॉज इट्स सर्विसेज, सो यू डेफिनेटली नीड मोर एंड मोर पीपल टू do more and more service, so it fulfills the hiring requirements, it fulfills the marginality requirements. And for you, if you want to consider or compare it in terms of the risk factor, so the initial जो मेरे दोनों retail के businesses थे, those were medium to low risk, but this will be medium to high risk because it's a service business, so the investment is not attached or linked with the with your equipment. So basically it's a services, तो इसमें आपका जो potential loss of investment है in case of God forbid the visa rejection, that will be maximum. So that you need to consider that it is a highly risky business but highly profitable business too. कैटेगरी नंबर 4 जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है लॉन्ड्रोमैट सर्विसेज का. तो लॉन्ड्रोमैट भी एक रिटेल बिजनेस है. यूजुअली इट इज अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस. इट्स समटाइम्स, in fact most of the time it's hard to find a laundromat below $150,000 के बजट में, because एक अच्छी profitable laundromat usually goes above $200,000 to $250,000. but in certain areas in small cities and towns you can definitely find old laundromats in $100,000 to $150,000 के बजट में. if you find that's a amazing business, because laundromat is one of the business in the whole country जिसका 95% success rate है, and that's given available in the public records. so laundromat business में आपका जो hiring process है उसमें challenge आता है, because usually it's a less human dependent business. एक आध employee रखते हो या आप खुद बैठते हो and you should be good. but if you add a pick up and drop off services in the laundromat, then that qualifies or justifies the requirement or necessities of hiring employees in the future, and it's a profitable business, a good margin business. So again, it fulfills all the requirements, and the best part is again on the risk factor, I would scale it between medium to low risk business, because highly profitable, highly scalable,
and most important is it's a capital backed business, so your investment is still safe, compared to the services business. फिफ्थ जो कैटेगरी है वो है फ्रेंचाइज की. अब फ्रेंचाइज जो है वो किसी भी सर्विसेज बिजनेस की हो सकती है, रिटेल्स की हो सकती है, वो डिफरेंट तरह की इंडस्ट्रीज की हो सकती है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हो सकते हैं, फूड एंड बेवरेजेस में, स्नैक्स में, किसी चीज में भी हो सकते हैं. सो इन जनरल द फ्रेंचाइज इज अ वेरी लुक्रेटिव इंडस्ट्री, इररिस्पेक्टिव कि वो किस सेक्टर की है. बट एज अ फ्रेंचाइज अगर आप किसी अच्छे बड़े ब्रांड की फ्रेंचाइज ले लेते हो तो दैट गिव्स यू अ गुड एडवांटेज ऑफ E2 सक्सेस. तो फ्रेंचाइज में एज लॉन्ग एज यू सिलेक्ट द राइट, यू मेक अ राइट सिलेक्शन ऑफ द फ्रेंचाइज एंड यू सिलेक्ट द राइट कैटेगरी ऑफ द बिजनेस. सो फ्रेंचाइज में इन्वेस्टमेंट 120, 150, 180,000 में आप एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हो. फ्रेंचाइजीज आर यूजुअली प्रॉफिटेबल, दे आर they require the human dependency, and तो ये आपकी E2 की तमाम रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करता है. और इसके साथ साथ जो E2 जो पॉलिसीज हैं या E2 वीजा ऑफिसर्स हैं, they also like the franchises even more, and the risk factor also remains neutral, I would say. So technically that covers in all of the categories for E2 requirements and the risk factor, risk parameters as well. सिक्स्थ जो कैटेगरी है उसमें मैं रिकमेंड करूंगा एनीथिंग रिलेटेड टू द ऑटोमोबाइल, जैसे मोबाइल ऑटो मैकेनिक शॉप्स, मोबाइल शॉप्स, सही है, या आपके जो है वो रेंट ए कार कंपनीज, आपके जो है वो मोबाइल टायर रिपेयरिंग सर्विसेज, या इस तरह की कोई भी जो ऐसी सर्विसेज, या इवन फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट ऑटो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स. अगर आप मिडिल ईस्ट से, पाकिस्तान से, या ऐसे आपके जो है वो बैकग्राउंड हो और ऑटो इंडस्ट्री में आपका बैकग्राउंड हो, तो ऑटो इंडस्ट्री इज अ टॉप लाइन इंडस्ट्री. सेम 100 से 150,000 में आप ऑटो इंडस्ट्रीज में अपना बिजनेस बना सकते हो, और ये एम्प्लॉयमेंट कैटेगरीज को भी पूरा करेगा डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस. जैसे आप रेंट ए कार में जा रहे हो तो यू नीड एम्प्लॉयज, राइट. अगर आप जो है वो मैकेनिक शॉप पे जा रहे हो, मोबाइल मैकेनिक शॉप पे, यू नीड एम्प्लॉयज. तो ये आपकी हायरिंग, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी एंड अगेन द रिस्क फैक्टर मीडियम टू लो बिकॉज एसेट बैक्ड बिजनेस है. सो ऑटो इंडस्ट्री का जो बिजनेस है दैट्स अ गुड कैटेगरी फॉर न्यू इन्वेस्टर्स इन अमेरिका एंड फॉर E2 वीजा एज वेल. लास्ट जो कैटेगरी है, सेवंथ कैटेगरी, वो है बेसिकली हेल्थ इंडस्ट्री की, हेल्थ केयर इंडस्ट्री की. तो हेल्थ केयर में अगर आप डॉक्टर हो, आप नर्स हो, आप फार्मासिस्ट हो, डेंटिस्ट हो, या इसके अलावा आपका हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आपका कोई बैकग्राउंड है, हेल्थ टेक से रिलेटेड आपका कोई बैकग्राउंड है, तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री अगेन इज मोस्ट हाईली डिमांडिंग इंडस्ट्री इन अमेरिका. इसमें अप्रूवल भी स्ट्रांग होते हैं, इसमें आपकी जो नेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी पूरी होती है. हेल्थ केयर में आपके पास होम केयर सर्विसेज की जो एजेंसी है वो आ जाती है. उसमें फ्रेंचाइज भी है, नॉन फ्रेंचाइज भी है, इंडिपेंडेंट बिजनेसेस भी हैं. तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में वो आ गया. हेल्थ केयर ऑटोमोबाइल में अगर आप जाना चाहो तो आप नॉन एमरजेंसी मेडिकल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जो है वो कर सकते हो. आप इसमें जो है वो डिफरेंट फ्रेंचाइजीज हैं डायग्नोस्टिक सेंटर्स की, वो ले सकते हो, इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक्स की. तो इस तरह की हेल्थ केयर के अंदर बहुत सारी एक जो है ना वो वैरायटी अवेलेबल है. बट हेल्थ केयर इन जनरल इन टॉप 100 से 150,000 के बजट में आप अच्छे हेल्थ केयर का जो इवन फ्रेंचाइज और नॉन फ्रेंचाइज बिजनेस जो है वो भी इस्टेब्लिश कर सकते हो. इसमें एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट भी पूरी होंगी, और जो रिस्क फैक्टर है इन टर्म्स ऑफ योर कैपिटल रिस्क इट मे बी मोर एक्सेप्ट द जो नॉन एमरजेंसी मेडिकल ट्रांसपोर्ट सर्विस है, बिकॉज अदर ऑल आर द अगेन सर्विसेज बिजनेस. बट इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ एंड पोटेंशियल it's definitely a good business to invest in. So practically this is all the different categories I have given it to you with the complete details and the breakup. So if you are planning to invest anything below $150,000, you need to remember these certain key points. Choose the labor scalable industries. Avoid passive or solo structures, because that does not justify for E2 requirements. Structure hiring of the employees realistically, practically. Think about the renewal before your approval. कि आपने उस बिजनेस को इस तरह सस्टेन भी करना है कि उस बिजनेस के ऊपर आप जो है वो रिन्यू भी करवा सकें और अपने बिजनेस को फ्लरिश भी कर सकें. बिकॉज
E2 is not the cheapest entry to the country. It's about your sustainable economic future growth plan and objectives for you and your family. तो अगर आप $150,000 के बजट में अपना E2 का बिजनेस जो है वो प्लान करना चाहते हैं, then you can probably book a consultation with my team, because we do not just recommend businesses, we design the E2 compliant and structured investment businesses for you, because it is not only about the immigrations, it is about your capital deployment. And if you still have any further questions and concerns, so feel free to reach out to me and my team would be happy to address all of your concerns. Thank you so much. Assalamu alaikum.